الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم جو تھے کتاب المعزون پڑھ رہے تھے، یعنی عبد معزون وہ غلام ہوتا ہے جس کے آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہو. تو کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، آگے مزید ہے کچھ مسائل باقی تھے. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبد معزون جو ہے، ہم نے پیچھے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر عبد معزون پر اتنا زیادہ قرض ہو کہ وہ قرض جو ہے اس کے پاس جو مال ہے اور جو اس کا گردن ہے وہ سارا جو ہے اس میں جانا پڑے تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، دے دیں گے. لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے عبد معزون پر اتنا زیادہ قرض آئے کہ اس کے پاس جو مال ہے، اس کا جو جان ہے، وہ سارا جو ہے سب کچھ اس میں جو ہے بک جا رہا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے آیا اس کے پاس جو مال ہے وہ آقا کا مال شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ تو وہی ہے جو کہ پہلے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کیا کریں گے، ہم سارا وہ سارا جائے گا اس کا مال، لیکن آیا شمار ہو سکتا ہے یا شمار نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں جو ہے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی غلام پر اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا ہو، مال ہو کہ سب کچھ غلام خود، اس کی جان، اس کا سب کچھ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ مال جو ہے یہ آقا کا مال نہیں کہلائے گا. البتہ یہ غلام جو ہے یہ آقا کا غلام ابھی بھی کہلائے گا، اگرچہ اس کا جان بھی اس میں جا رہا ہو، لیکن یہ مال جو ہے اس کے پاس ہے، یہ آقا کا مال جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، یہ قرض خواہوں کی کیا ہوتا ہے، مال شمار ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی مذکورہ صورت میں بھی کیا ہوتا ہے، غلام بھی آقا کا شمار ہوگا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی آقا کا شمار ہوگا. لیکن وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں قرض خواہوں کے لیے جو ہے وہ مالک یعنی آقا جو ہے ان کی قرضے کا ذمہ دار ہوگا. کیا ہوگا، ذمہ دار ہوگا. تو دیکھو، وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ، اور اگر لازم ہو جائے عبد معزون پر دیون، مال کا قرض، یحیط بمالہ کی گیر رکھا ہو اس کے مال کو بھی، ورقبتی اس کی جان کو بھی، لم یملک المولا، تو مالک نہیں ہوگا المولا آقا، ما اس چیز کی، فی یدہ جو اس کے ہاتھوں میں ہے. فإن اعتق عبیدہ، پس اگر وہ اپنے غلام کو آزاد کر، یعنی عبد معزون کے مال میں جو ہے اس کے ہاتھ میں جو مال ہے اس میں ایک غلام بھی تھا، لم تعتق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا، وہ یعنی اس کی غلام، عبد معزون کے ہاتھ میں ایک غلام تھا، وہ آقا نے اس کو اگر آزاد کرنا چاہے تب بھی جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ غلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ آقا کا مال تصور نہیں ہوتا، کس صورت میں، جب اس پر بہت زیادہ قرض ہو. وقال رحمہم اللہ تعالی، صاحبین فرماتے ہو، یملکو، وہ مالک ہوگا، اس چیز کا فی یدہ جو کہ کیا عبد معزون کے کیا ہو، ہاتھ میں ہو. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر معزون جو ہے، ویسے آپ لوگوں کو تو یہ بات معلوم ہے کہ آقا جو ہے اپنے غلام کو کوئی یعنی اگر کسی آقا نے جو ہے اپنے غلام کو جو ہے وہ تجارت کی اجازت دی، اب وہ تو ظاہر سی بات ہے خرید و فروخت کرے گا نا. تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ آقا جو ہے وہ اپنے غلام سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، نہ تو اس پر کچھ چیز بیچ سکتا ہے اور نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، اس سے کوئی چیز خرید سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلام جو ہے وہ پورا قرض میں ڈوب گیا ہو، کیا ہو گیا، ڈوب گیا ہو، تو چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو ہے اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ تو آقا کا شمار نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جو ہے امام قدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر کوئی مناسب ریٹ کے مطابق، کیا مناسب ریٹ کے مطابق غلام جو ہے آقا کو کوئی بیچنا چاہے، کوئی چیز بیچنا چاہے، یا جو ہے آقا غلام کو کوئی چیز بیچنا چاہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جائز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بشرطے کہ اس میں جو ہے کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو، مناسب ریٹ ہو، یعنی بازاری قیمت پر ہے. بس اگر اسی طرح جو ہے لیکن اگر کیا
हाँ, लेकिन अगर क्या उसने जो है कम पर, यानी अगर सवाल होता है कि अगर इससे, यानी अगर इससे ज्यादा, यानी अगर गुलाम अब्द माजून जो है वो क्या हो, मकरूज हो, क्या है, मकरूज हो, तो फिर इस सूरत में जो है वो मुनासिब रेट पर जो है वो बेच सकता है, क्या होता है, बेच सकता है। लेकिन और अगर रेट से कम हो, क्या है, वो आगे मसला आते हैं, वो फिर वहां पर पढ़ लेंगे। देखो, व इज़ा बा अब्दुल माजून मिनल मौला शैअन, बस अगर गुलाम ने जो है, अब्द माजून ने जो है अपने मौला से कोई चीज जो है खरीद लिया, बिमिसली कीमत है, यानी बाजारी कीमत के मुताबिक, जाज आती है, जाज होगा। व इन बाआ, अगर बेचे, ये बेचने का मामला है, किस चीज का, बेचने का मामला है, यानी अगर उसको बेचे, क्या गुलाम जो है वो अका के हाथ में कोई चीज बेचे, तब तो यह जो है ये क्या है, मिसली कीमत के एतबार से जायज होगा। लेकिन अगर इससे कम ही बेची हो तो फिर वह इन बा भी नुकसान है, लेकिन अगर उसको जो है नुकसान के साथ जो है वो बेचे, लम यजुज, तो फिर क्या होगा, यानी अरजान कीमत पर, कम कीमत पर बेचे, तब जो है लम यजुज, तो फिर ये जायज है, क्योंकि तोहमत हो सकता है। लेकिन अगर मौला जो है, इसका बरखिलाफ मसला, अगर मौला जो है उसके हाथ जो है कोई बेचे, समझ आ गए, आका जो है अपने अब्द माजून के हाथ कोई चीज बेचे, यानी गुलाम जो है वो खरीद ले, तो फिर जो है मिसली कीमत और इससे कम, दोनों हर सूरत में जो है वो जायज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है तुहमत नहीं है ना, वो तो अका का अगर नुकसान होगा तो अका का नुकसान होता है, गुलाम का तो कोई नुकसान, जिस वजह से कर्ज ख्वाल हो जो है वो इस पर जो है तुहमत नहीं लगाने का इम्कान नहीं है, बरखिलाफ पहली सूरत में जहां पर क्या था, अब्द माजून जो था वो क्या था, बाया था, अका जो है वो मुश्तरी था, तो फिर इस सूरत में बाजारी कीमत के मुताबिक तो बेच सकते हैं, लेकिन कम कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। देखो, व इन बाउल मौला शैअन बिमिस्लिल कीमत, और अगर बेचे माजून के हाथ तो अका कोई चीज हो, यानी इस सूरत में जो है क्या होता है, अब्द माजून जो है ये मुश्तरी होते हैं, मौला जो है वो बाय होता है, बिमिस्लिल कीमत और अकल्ला, यानी बाजारी कीमत के मुताबिक और अकल या इससे कम, जाजल बया, तो फिर बया जो है वो जायज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई तुहमत नहीं है, बरखिलाफ पहले मिसले के। आगे फरमाते हैं कि अगर वो आका ने अपने गुलाम को, गुलाम के ऊपर कोई चीज बेच दी, क्या कर दी, बेच दी, फिर वक्त कर दिया, तो अगर समझ से पहले पहले, क्या, समन से पहले पहले जो है मबी को क्या कर दिया, हवाले कर दिया, अब्द माजून के हवाले कर दिया, अभी तक समन नहीं दिया है, तो फिर इस सूरत में जैसे ही उसने मबी बिला समन के गुलाम को दे दिया, तो मबी की कीमत बातिल हो जाएगी, क्या हो जाए, बातिल हो जाए, क्यों, क्योंकि ये तो क्या होता है, ये तो अका की जानिब से जो है वो गुलाम पर एक किस्म का कर्ज हो गया ना, यानी बगैर समन जो है एक किस्म का कर्ज हो गया, और आप लोगों को मालूम है कि अका का अपने गुलाम पर कोई कर्ज नहीं होता, तो इसी वजह से जो है ये उसका ये समन जो है वो बातिल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अका को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो मबी को सुपुर्द ना करे जब तक कि समन हो ना, लेकिन जब एक मरतबा सुपुर्द कर ले तो ये तो बतौर कर्ज हो गया, और कर्ज जो है वो क्या होता है, ये वो नहीं होता। देखो, फ़इन सल्लमहु इलैहि, अब अगर अका इस चीज को गुलाम के हवाले कर ले, कबला कब्ज़ समने, कीमत पर कब्जा करने से पहले, बतौला समनो, तो कीमत बातिल हो जाएगी, तो कीमत बातिल हो जाएगी। वइन अमसको फी यदिही, और अगर मबी को अका रोक ले, क्या कर ले, फी यदिही अपने हाथ पे, हत्ता यस्तौफिया समन, यहाँ तक के क्या अब्द माज़ून जो है उसको समन दे दे, जाज, तो ये क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। आगे क्या फरमाते हैं कि अगर माजून गुलाम, यानी हमने तो पीछे हमने ये बात पढ़ ली कि हाँ, अब्द माजून जो होता है ये अका की मिल्कियत में अभी भी होता है, चाहे वो उसका जान जो है वो क्यों ना कर्जे में चला जाए। बस अगर इस सूरत में जो है यानी एक अब्द माजून जो है वो बहुत ज्यादा मकरूज हो, लोगों का बहुत ज्यादा इसके ऊपर कर्ज हो, इस सूरत में अका इस गुलाम को क्या कर ले, आजाद कर ले, तो ये आजादी जो है ये सही होगी, तसव्वुर, ये आजाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो जब आजाद हो जाए तो फिर उसके बाद जो है गुलामा के लिए जो है वो मौला के ऊपर जो है वो जामिन होगा, किस चीज के लिए, कर्ज ख्वाहों के लिए, ये अब्द माजून की
कीमत के बकदर। क्या होता है कीमत की बकदर? क्या होगा? मौला जामिन होगा। देखो, व इन आतकल मौला अब्दुल माजून, और अगर मौला जो है वो क्या कर ले, अब्द माजून को क्या कर ले, आजाद करने वाले ही दुयून, इस हाल में आजाद करे कि उस पर कर्ज हो, फायद को हो जायज, तो उसका ये तक जो है ये आजादी जायज होगी। वल मौला ज़ामिन, मौला जो है वो जामिन हो बेकीमत ही, गुलाम की कीमत के बकदर, लिल गुरमा, किस चीज के लिए? कर्ज ख्वाहों का। हाँ, अलबत्ता जो यानी इतना तो कीमत बाकी होगा, लेकिन जो कर्जखाओं को और भी कीमत हो, यानी उसकी जान से भी ज्यादा कीमत हो, मिसाल के तौर पर उसका 10,000 का कीमत है, ये इस गुलाम का, उसका जो है 12 कर्जखाओं का 12,000 कीमत हो, तो ये 10,000 जो है ये तो मौला के ऊपर वाजिब होगी ना जब ये आजाद करे, लेकिन ये 2,000 कीमत जो है ये क्या होता है, ये गुलाम जब आजाद हो जाए तो उससे मुतालबा किया जाएगा। वमा बकिया मिन अद्दुयून, और जो बाकी रह जाए कर्ज में से, युतालबु, तो तलब किया जाएगा बिही, किस चीज से? इसका मुतालबा किया जाए अलमुअतक, आजाद करदा गुलाम से। आगे फरमाते हैं कि एक बांदी है, क्या है? एक बांदी है, आका ने उसको तिजारत करने की इजाजत दी। अब उसको जब तिजारत करने की इजाजत दी गई, तो इस हाल में जो है उन्होंने बच्चा जन लिया, जो कि उसके आका से था, और आका ने इस बच्चे का इकरार भी किया कि ये मेरा क्या है, या ये मेरा बच्चा है। तो फिर इस सूरत में जो है ये उम्मे वलद बनेगी। क्या होगी? उम्मे वलद। और उम्मे वलद जो है यानी आका की बच्ची की माँ। तो अब इस सूरत में जब ये आका मरेगा तो ये आजाद होगी। क्या होगी? आजाद होगी। वइज़ा वलदतिल मअज़ूनतु मिन मौलाहा, जब बच्चा झन ले मौजूना मिन मौलाहा, अपने आका से, फज़ालिका हजरुन अलैहा, तो ये भी इस पर हजर हो गया, यानी जैसे ही वो जल ले तो ये जो है ये महजूरा कहलाए, खुद बखुद, चाहे आका ने उसको तिजारत से रोका हो या ना, ये खुद बहुत महजूरा अलैहा कहलाएगी, और जो है ये साथ में उम्मे वलद भी बनेगी। आगे फरमाते हैं कि अगर बच्ची का वली बच्चे को तिजारत की इजाजत दे देता है, तो ये बच्चे भी खरीद फरोख्त में गुलाम माजून, अब्द माजून की तरह होगा। समझे कि क्या होगा? अब्द माजून की तरह होगा, जबकि वो बै और शिरा को जानता हो। वह इज़ा अज़िनल वली सबी लिस्सबी फी तिजारत, और जब इजाजत दे बच्चे की वली, बच्चे का क्या? वली, लिस्सबी, सबी को फी तिजारत के सिलसिले में, फहुवा फी शिराए वल बै कल अब्दिल माजून, तो बस वो खरीद और फरोख्त में जो है अब्द माजून की तरह होगा। इज़ा काना याक़िलुल बैअ व शिरा, जबकि वो जानते हो किस चीज को? बया और शिरा को जानते हो। आगे क्या फरमाते हैं? किताबुल मुज़ाराअत। क्या? किताबुल मुज़ाराअह, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ये खेती बाड़ी का काम है। लुग़वी यानी मुज़ारा, ज़ारा युज़ारा मुज़ारातन का मानी है या बमानी बीज डालना। क्या? बीज बीज डालना, बोना, यानी क्या होता है? फसल को उगाना जिसको कहते हैं हम। तो ये क्या होता है? ये मुज़ारात हो गए, खेती बाड़ी का काम करना, बीज डालना, फिर फसल गंदम को डालना वगैरह जो है ये किसान का जो काम होता है। इस्तिलाही तारीफ कहते हैं उस अक़द को कहते हैं जो पैदा होने वाले गले की तिहाई या चुताई वगैरह पर मुनक़्क़द हो। जैसे कि मेरा कोई एक क्या होता है या आसिफा का कोई जमीन होता है, वो फौजिया को दे देते हैं कि फौजिया अब मेरे पास टाइम नहीं होता है, आप ऐसा कर ले कि मेरे लिए जो है इसमें जो है खेती बाड़ी, यानी आप इसमें मेहनत कर ले, और मेरा जो है और जो गल्ला हासिल हो जाए, नफा हासिल हो जाए, इसमें जो है मेरा आधा होगा, आपका आधा होगा, या मेरा तिहाई होगा, आपका 2 तिहाई होगा, या मेरा चौथाई होगा, आपका 3 चौथाई होंगे। तो इस तरह जो है कोई जो है यानी उसी नफे के अंदर अंदर जो है वो अपने लिए भी हिस्सा मुकर्रर करे, और काम करने वाले की भी हिस्सा मुकर्रर कर ले किसान का। तो जैसे पंजाब में जो है उमूमन अक्सर ऐसा होता है, तो इसी वजह से जो है वो इसको कहते हैं क्या? मुज़ारात। यानी इस्तिलाही तारीफ मुज़ारात उस अक़द को कहते हैं जो पैदा होने वाले गले की तिहाई या चुताई या निसफ वगैरह पर मुनक़्क़द हो। मुज़ारात का सबूत भी क्या होता है? इससे साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीनों को यहूदियों को बटाई के तौर पर दिया था। क्या किया? बटाई के तौर पर दिया था कि आप लोग इसमें काम कर लो, ये मुसलमानों की जमीन है, आप इसमें काम कर लो, फिर आप लोगों का आधा होगा, हमारा भी आधा होगा। अब सवाल होता है कि आया इसी तरह जो है मुज़ारात। अब मुज़ारात की कुछ किस्में हैं। पहला मुज़ारात एक किस्म यह है कि मालिक अपनी जमीन को
किसी को किराए के तौर पर, मिसाल के तौर पर आसिफा के एक जमीन था, समझा कि उसके घर के पास एक जमीन था, फौजी को दे दिया कि आप इसमें जो है ये क्या खेती बाड़ी कर लिया करे, फसल उगा लिया करे, लेकिन आप जो है मिसाल के तौर पर रोजाना मुझे हर महीने 10,000 किराया दे दिया करे। तो ये तो सर से ये मुजारत होगी नहीं, ये तो इजारा का हुक्म हो गया, तो इसी वजह से ये तो बाइत्तिफाक उलमा जायज है। दूसरा ये है कि आसिफा के पास एक जमीन था, वो क्या कर लेते हैं, फौजे को खेती बाड़ी के काम के लिए दे देते हैं और कह लेते हैं कि हो यानी जो भी नफा हासिल होगा या जो भी फसल उगाया जाएगा, जो भी नफा हासिल होगा वो मेरे और तेरे दरमियान जो है नफा निसफ निसफ होगा या चौथाई होगा या 2/3 होगा, यानी जो भी हिस्सा मुकर्रर करे। तो ये जायज होगा या जायज नहीं होगा? तो इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये जायज नहीं है, जबकि अइम्मा सलासा और इस तरह साहिबाइन के नजदीक जो है ये जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबरा, इसका मुजारात का एक दूसरा नाम है मुखाबरा, हदीस में उसके मुखाबरा का नाम आया है, लफ्ज आया है। मुखाबरा से क्या कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कर दिया, उससे मना फरमाया है। क्या है? क्योंकि ये एक किस्म के अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ऐलान जंग सुन ले, यानी जो शख्स जो है वो मुखाबरा को ना छोड़े, मुजारात को ना छोड़े, तो वो अल्लाह और इसके रसूल के लिए फलयुअज़िन बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूलिही, कि वो बस वो सुन ले, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन ले। तो उस हदीस से वो इस्तिदलाल करते हैं कि वो जायज नहीं है। जबकि मसलासा और साहिबान जो है वो अहले खैबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल जो है वो खैबर के बारे में मैंने बता दिया पहले, कि वो जो है इस्तिदलाल करते हैं कि खैबर, अहले खैबर वाली यहूदियों को खैबर की जमीनों को बटाई के तौर पर, क्या बटाई के अर्ज से जो है वो दे दिए गए थे, समझा गए, बटाई पर दे दिया गया था। तो उस हदीस से जो है वो क्या है, वो साहिबान इस्तिदलाल करते हैं। लेकिन मुफ्ताबिही कौल जो है वो किसका है? साहिबाइन का है, क्योंकि आजकल लोग जो है हमारे गांव में भी यही जो है सिलसिला होता है, और इस तरह जितनी भी जमीन है इसमें ये सिलसिला होता है, तो इसी वजह से ये जायज है बाइत्तिफाक़, और ये साहिबान के कौल पर फतवा दी है, इसी वजह से ये जायज है। देखो क़ाल अबू हनीफा रहमहुल्लाह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल-मुज़ारतु बिसुलसी वरुबय बातिलतुन वक़ाला जाइज़ा। क्या फरमाते हैं साहिबा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुज़ारअत जो है वो सुलस पर, यानी 1/3 पर या चौथाई पर देना जो है ये क्या है? बातिल है। और साहिबाइन फरमाते हैं कि ये जायज है। वो क्या है? वो कहते हैं कि ये जायज है। अच्छा, तो जब साहिबान के कौल पर फतवा है, यानी फतवा भी साहिबान का कौल पर है और उनके जी जवाज का है, तो यहाँ पर ये जितने भी पूरे बाब है तो वो तो मुज़ारात का है, तो इसी वजह से जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाँ मसाइल नहीं, ये जितने भी मसाइल हम आगे बयान करते हैं वो सारे जो है साहिबान के कौल पर मुतफर्रे है। तो अब कहते हैं कि मुज़ारात की कुछ सूरतें होती है, यानी क्या होती है, कुछ सूरतें होती है, तो उनमें से कौन सा जायज है कौन सा जायज नहीं है, तो उसके बारे में कहते हैं हमेशा ये याद रखो कि मुज़ारात में 3 चीजें इस्तेमाल होती है। एक जो है जमीन इस्तेमाल होती है। दूसरा जो है यानी ये ट्रैक्टर वगैरह, आजकल के हिसाब से पहले जमाने से ये क्या होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इसके जरिए से जो है वो क्या होता है, बोया जाता था। तो वो, और तीसरा है बीज डालना, समझ आए, खल्ला, गलत जो है वो क्या करना, बीज डालना। तो कभी जो है ये जमीन की तरफ, जमीन वाले की तरफ से होगी गल्ला और एक की तरफ से काम होगा, और कभी जो है वो क्या होती है, कभी है। तो इस एतबार से जो है इसकी 4 सूरतें बनती है। क्या होती है? 4 सूरतें। तो देखो पहली किस्म यह है कि जमीन और बीज, क्या, जमीन और बीज, यानी गल्ला बीज क्या होता है, एक का हो काम और बेल ये दूसरे का हो, तो ये सूरत जो है ये तो क्या है, जायज है। क्या है? जायज है, जायज तो है। लेकिन इस मिसाल में जो है जिसकी जमीन और गल्ला हो वो पूरा गल्ला उसका होगा, यानी नफा जो है वो क्या होगा, उसका होगा, और जिसने काम किया हो और बिल दिया हो उसको उजरत मिलेगा। क्या हो गया? ये मुख्तलिफ सूरत है, मुख्तलिफ हुकुमात है। तो देखो जिसका जमीन हो और क्या हो, बीज हो, नहीं अहलुल अर्ज हो और इस तरह बीज हो यानी गल्ला हो, तो क्या होगा, उसका पूरा नफा जो है, उन्होंने जितना फसल उगाया है, जितना गल्ला आया है, वो सारा जो है किस चीज का होगा, ये जमीन वाले का होगा। और बेल वाले और काम करने वाले को उसके बेल का
اور یعنی ٹریکٹر وغیرہ کا، اور اس طرح اس کے کام کا اجرت ملے گا. دیکھو وہی عندہما علی اربعتی اوجہ، صاحبین کے نزدیک مزارعت 4 قسم پر ہے. اذا كانت الارض والبذر لواحد، جب زمین اور بیج کیا ہو، ایک کا ہو. والعمل والبقر لواحد، اور کام اور بیل جو ہے وہ کسی اور کا ہو. جازت المزارعت، تو پھر کیا ہو جائے گا، مزارعت جو ہے وہ جائز ہوگا. وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ، دوسرا مثال، دوسری قسم کیا ہے کہ زمین ایک کا ہو اور باقی کام، کیا، زمین ایک کا ہو، کام، اور اس طرح جو ہے بیج، اور اسی طرح بیل، یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک کا ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، زمین، تو یہ صورت بھی کیا ہوگا، جائز ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. اور اس صورت میں جو ہے زمین ہم یوں سمجھے گی کہ زمین کرائے پر دیا گیا ہے، یعنی یہ غلط جو ہے، جو فصل اگائے، جو نفع حاصل ہوگا، وہ جو ہے بیج والے کا ہوگا. کیا ہوتا ہے، بیج والے کا ہوگا، اور زمین کا ہم کرایہ مقرر کر لیں گے. یہ دوسری صورت ہو گئی. دیکھو وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ، جب زمین جو ہے وہ کسی ایک کا ہو. والعمل والبقر والبذر لآخر، اور کام، بیل، اور اس طرح بیج یہ کسی اور کا ہو. جازت المزارعت، اور مزارعت بھی جائز ہے. حکم نہیں بیان کیا میں نے، حکم ساتھ ساتھ میں بیان کر دیا. وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ کیا، وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذَرُ وَالْبَقْرُ لِوَاحِدٍ، ہاں لیکن اگر کسی کا زمین، بیج اور بیل ایک ہو، صرف کام جو ہے دوسرے کا ہو، تو یہ بھی جائز ہوگا. اور پھر اس صورت میں جو ہے پورا غلط جو ہے بیج والے کا ہوگا، اور کام والا جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، اس کو صرف اور صرف اجرت ملے گا. لیکن اگر وہ زمین اور بیل ایک کا ہو، اور بیج اور کام دوسرے کا ہو، تو پھر جو ہے یہ اس صورت میں جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. سمجھا، یہ چوتھی صورت جو ہے وہ باطل ہے، باقی 3 صورتیں جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے. کیا ہے، یہ جائز ہے. کیوں، کیونکہ یہ بیل اور زمین، یعنی بیل، یا ہم نے کہا نا کہ زمین اور بیل آخری صورت میں ایک کا ہو، اور بیج اور ایک کام دوسرے کا ہو، تو یہ باطل ہے. کیونکہ بیل اور زمین کی تابع نہیں ہو سکتا. یعنی بیل جو ہے یہ کیا ہے، ٹریکٹر جو ہے یہ زمین کی تابع نہیں ہو، کیونکہ ان دونوں کا منفعت الگ الگ ہوتا ہے. زمین تو غلہ اگانے کے لیے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور بیل جو ہے وہ پاڑنے کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے تو بیچ والا صرف اور صرف زمین کو اجرت پر لے سکے گا. یعنی یہ بیچ والا جو ہے وہ صرف زمین کو اجرت پر لے سکتا ہے، مزارعات پر نہیں دے سکتا. تو اسی وجہ سے جو ہے بیل کو پیدا شدہ غلے کے بدلے اجرت پر لینا پڑے گا، جو کہ انہوں نے نہیں. تو اسی وجہ سے یہ کیا ہوگا، یہ باطل ہو جائے گا. کیا ہو جائے، یہ مزارعات باطل ہو جائے گا. دیکھو وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذَرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جازت، اور اگر زمین، بیل اور بیل ایک کا ہو، اور کام جو ہے وہ دوسرے کا ہو. والعمل لواحد، اور والعمل لآخر، اور عمل جو ہے وہ دوسرے کا، جازت، تو یہ بھی جائز ہوگا. وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، اور اگر زمین اور بیل ایک کا ہو. والبذر والعمل لآخر، اور کیا ہو، بیج اور کام جو ہے دوسرے کا ہو. فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو پھر یہ کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ مزارعات کیا، مزارعات کے لیے وقت متعین کرنا ضروری ہے. بس اگر مزارعات یعنی 1 سال کا ہے، کتنا سال کا آپ جو ہے وہ آپس میں بٹائی کا کام لے رہے ہو، آپس میں جو ہے مزارعت کر رہے ہیں، تو وہ وقت کا متعین ہونا ضروری ہے. دیکھو ولا تصح المزارعۃ الا على مدت معلومۃ، اور صحیح نہیں ہے مزارعت مگر مدت معلومہ پر. وان يكون الخارج، آگے فرماتے ہیں کہ مزارعت کی صحیح، یعنی پہلا شرط تو یہ ذکر کیا مزارعت کا مدت معلوم ہے. دوسری شرط جو ہے یہ بیان کی کہ جو کچھ غلہ پیدا ہو وہ زمین والے اور بٹائی والے کے درمیان مشترک ہو. یہ نہیں ہے کہ اب اگر آصفہ اور فوزے کے درمیان جو ہے بٹائی کا کوئی مزارعت کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ آصفہ جو ہے اپنے لیے مختص پیسے کا جو ہے تعین کر لے، یہ کہہ لے کہ جو کچھ نفع ہوگا اس میں 10,000 مجھے الگ سے دیے جائیں گے، اور باقی جو ہے میرا اور تیرا جو ہے اتنا اتنا ہوگا، یعنی 2/3 میرا اور 1/3 آپ کا، یعنی سب میں سے جو بھی مقرر کرے. تو اس جو ہے یہ یعنی کسی کے لیے جو ہے الگ سے کوئی حصہ متعین کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. دیکھو وَأَيَّكُونَ الْخَارِجَ بَيْنَهُمْ مُشَاعًا، اور یہ کہ ہو پیداوار ان دونوں کے درمیان مشاعًا مشترک ہو. فَإِن شَرَطَا، پس اگر ان دونوں شرط لگائے، لِأَحَدِهِمَا کسی ایک، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، قُفْزَانًا مُسَمَّاتًا، کتنا، یعنی
यानी एक मुकर्रर का फीस का फहिया बातिलतुन, तो फिर ये बातिल होगा, क्या होगा, बातिल होगा, तो ये जायज नहीं होगा। काफीस आप लोग जानते हो ये एक क्या होता है, एक पैमाना है। आगे क्या फरमाते हैं, अगर किसी ने जो है ऐसा शर्त लगाई कि हो यानी ये कह दिया कि हो मिसाल के तौर पर फौजिया और आसिफा के दरमियान जो है एक जमीन के ऊपर जो है मुजारात हो गई, क्या हो गई, मुजारात हो गई। अब जो है वो आसिफा जो है वो कहते हैं कि अगर यानी जमीन के साथ कभी छोटी नाली गुजरती है, कभी बड़ी बड़ी नाली गुजरती है, तो बड़ी नाली के अतराफ में जो है ये पल जो है वो जल्दी उगते हैं, क्या होते हैं, जल्दी उग जाते हैं, बड़े जो है वो उसका फसल अच्छा होता है बरखलाफ छोटी नाली के। तो अब जो है वो कह लेते हैं कि बड़ी नाली के पास जो क्या होता है गल्ला उगता है तो वो मेरा होगा, और इसके पास जो उगता है वो आपका होगा, तो इस तरह भी करना जायज नहीं होगा। देखो वह कजालिक, और इस तरह इज़ा शरत, जब ये दोनों शर्त मुकर्रर करे, माँ उस चीज का, अलल मज़यानाति वस्सवाकी, क्या बड़ी नदी और छोटी नदियों की गल्ले के मुतालिक, तो भी जायज नहीं है। मज़यात जो है ये बड़ी नदी को कहा जाता है, सवाकी साकियतुन की जमा है, छोटी नाली को कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब मुजारात सही हो जाएगी तो जितना जो है नफा हासिल होगा, जितना भी क्या होता है पैदावार हासिल होते हैं, वो उन दोनों के दरमियान तकसीम होगा उसकी शर्त के मुताबिक, यानी एक तिहाई दो तिहाई, इस तरह जो है जो शर्त लगाई है। वइज़ा सह्हतिल मुज़ाराअत, तो जब मुजारात सही हो जाएगा, फल खारिज बैनहुमा अला शर्ति, तो पैदावार जो है इन दोनों के दरमियान, तो उनकी पैदावार उनकी शर्त के मुताबिक उनके दरमियान ये पैदावार होगा। लेकिन अगर वो जो है जमीन जमीन इतना बंजर जमीन, तो उन्होंने कुछ भी नहीं उगाया, कुछ भी पैदावार उससे हासिल नहीं हुआ, तो फिर आमिल के लिए कुछ भी वाजिब नहीं हुआ, अलग से वो उजरत वसूल नहीं कर सकते कि मुझे अपने मेहनत दे दो अगर कुछ नहीं निकला। क्यों, क्योंकि नफा में जो है मुजारात किसे कहते हैं, नफा में जो है यानी पैदावार में जो है हिस्सेदार होना, और पैदावार में तो कुछ निकले ही नहीं है, तो इस वजह से वो खाली हाथ घर की तरफ लौटेगा। वह लम तुखरिजल अर्ज़ शैयन, लेकिन अगर जमीन ने कुछ भी पैदावार नहीं दिया, फला शैअ लिल आमिल, तो फिर आमिल के लिए कुछ भी नहीं होगा। आगे फरमाते हैं कि अगर मुजारात जो है वो किसी वजह से जो है वो फासिद हो जाए, क्या हो जाएगा, फासिद हो जाए, तो इस जमीन का पैदावार और जो है वो किस चीज को, बीज वाले को होगी, यानी जिसने बीज डाली है उसको होगी, और काम करने वाले को जो है वो मजदूरी मिलेगा, जितना जो है बाजारी, जितने बाजार में जो है इतने किसान को दिए जाते हैं। क्या होता है कि किसान को जितना दिया जाता है उतनी ही पर जो है वो क्या दिया जाता है, उसको उजरत मिसल मिलेगा। बाकी जो है मुजारात के फासिद होने की सूरत में बीच वाले का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है यानी उसका गला होगा, और दूसरे का अमल काम करने वाले का उजरत मिसल होगा। वह इजाफा से मुजारात, जब मुजारात फाज हो जाए, फल खारिज लिसाहिबिल बजरे, तो बजर कहते हैं बीज को, तो बीज वाले को क्या होगा, पैदावार होगा। फिर इनकान अल बजर मिन क़बल रब्बिल अर्ज़, बस अगर बीज वाला जो है, यानी अगर बीज जो है वो किसे, जमीन जमीन के मालिक की तरफ से है, फलिल आमिल अज्र मिस्लिही, तो फिर आमिल को अजरत मिसल मिलेगा। ला युज़ादु अला मिक़दारी, तो जो कि ज्यादा नहीं होगा उस मिक़दार पर, शुरित लहू मिनल खारिज, जो पैदावार में उसके लिए जो है वो शर्त है, मिसाल के तौर पर उसकी पैदावार में जो है दो तिहाई उसके लिए जो है नफा मुकर्रर किया गया था, अब जो है वो उसको उजरती मिसल इतना मिलेगा जो दो तिहाई के बराबर हो, इससे ज्यादा ना हो। वक़ाल मोहम्मद रहमतुल्लाह उजर मिसल बालिगन मा बलगा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बस उसको उजरती मिसल मिलेगा, चाहे उसको जितना पैदावार में उसके लिए मुकर्रर किया गया था उससे भी ज्यादा ऊपर आ जाए। लहू, और उसके लिए अजर मिसली, उसके अजर में से लोग बालिगा, जो पहुंचने वाला, माँ बला यानी जहां तक पहुंचे वहां तक जो है वो क्या होगा, तब भी उजरत मिसल मिलेगा। लेकिन अगर वो बजर जो है वो आमिल की तरफ से हो, कामिल क्या होते हैं वो, काम करने वाले की तरफ से बीच हो, तो सारा गलत जो है वो आमिल को मिलेगा, और जमीन वाले को जो है उजरत मिसल मिलेगा, किस चीज की, इस जमीन की। व इनकान अल बजर मिन क़बल आमिल, और अगर आमिल की तरफ से बीज हो, वली साहिबिल अर्ज़ अज्र मिसलिहा, तो फिर जमीन वाले को उजरत मिसल मिलेगा। व इज़ा अक़दतिल मुज़ारात, और जब मुजारात का मामला तय हो गया, फम तना साहिबुल बद्र में लम युजबर अलैहि, यानी मुजारात मुनक्किद हो गए, फिर उसके बाद वाले जो है वो बीच वाला काम करने से रुक गया, तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा।
वइज़ा क़दितिल मुज़ारात, और जब मुज़ारात का मामला तय हो गया, फ़म्तना साहिबुल बद्र मिनल अमल, फिर जो है रुक गया बीच वाला काम करने से, तो काम पर लम युजबर अलैहि, तो काम पर मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर रुक गया वो शख्स जिसकी तरफ वो बीच नहीं है, समझ आएगा, ये बीच नहीं है ये, क्योंकि वे पे तो वो बीच वाला नहीं होगा ना, तो फिर जो है हाकिम को उसके काम करने पर मजबूर हो जा करेगा। व इन इम्तना अल्लज़ी, और अगर रुक जाए, अल्लज़ी वो शख्स लैसा मिन क़िबलिहिल बद्र, कि जिसकी तरफ से जो है बजर यानी बीज ना हो, अजबरुल हाकिम अलल अमले, तो मजबूर करेगा उसको हाकिम काम करने पर, क्या करेगा, उसको मजबूर करेगा काम करने पर। क्यों? क्योंकि अब काम करने में कोई असर शदीद नहीं है, जबकि बीच की, अगर बीच वाला जो है वो काम से रुक गया, तो क्या होता है, हो सकता है कि उनके पास माल ना हो, बीज ना हो, इसी वजह से जो है वो काम करने से रुक गया, तो वो जो है क्या होता है, इसी वजह से उसको नहीं मजबूर किया जाए, बरखिलाफ किसकी, कि जिसकी तरफ वो बीच ना हो तब भी जो है वो नखरे करता है, तो उसको हाकिम मजबूर कर सकता है। अच्छा, इज़ा मात अहद, कुछ कती मुसाकात जो है अभी खत्म कर ले ये पूरा, फिर इंशाल्लाह कल से जो है किताब निकाह शुरू करते हैं। इज़ा मात अहदुल मुतआक़िदैन बततिल, यानी अगर क्या होता है, मुज़ारात में जो है कोई एक को आकिद जो है अक़द करने वाला मर जाए, तभी जो है ये मुज़ारात ख़त्म हो जाएगा। व इज़ा मात अहदुल मुतआक़िदैन, और जब और अगर मर जाए मुतआक़िदैन में से कोई एक, बतलतिल मुज़ारात, तो फिर मुज़ारात बातिल हो जाएगी। व इज़ा, इस तरह जब मुज़ारात का वक्त मुकर्रर हो गया था, और वो क्या होता है, मुज़ारात का वक्त तो ख़त्म हो गया, हालांकि अभी तक जो है वो खेती जो है वो पक्की नहीं है, क्या होता है, खेती अभी तक पक्की नहीं है, यानी वो कच्ची गई है, तो दोनों की तरफ से नुकसान होगा ना, तो इसी वजह से जो है इसका हल यह है कि बटाई वाले का जितना हिस्सा उसके हिस्से के मुताबिक उजरत मिसल उस पर लाजिम होगी, क्या होगी, उस पर लाजिम होगी। और जमीन वाले का ये ना, इस सूरत में जमीन का फायदा ये होगा कि एक माह की उजरत मिसल है, मिसाल के तौर पर एक साल के लिए जो है किसी ने उजरत तो क्या मुज़ारात कर दी, अब वो एक साल तो पूरा हो गया, लेकिन अभी तक फसल जो है वो पक नहीं गई है, कच्ची है, तो अब जो है वो क्या करें, बाकी जितने पक्के होने तक जितना वक्त मुकर्रर है, मिसाल के तौर पर 2 महीने 3 महीने, तो उस पर जो है बाजारी कीमत के मुताबिक जो है इस पर कराया वाजिब होगा, क्या होगा, कराया वाजिब होगा। देखो, वह इज़ा इनक़ज़त मुद्दतुल मुज़ारअत, और जब गुजर जाए मुज़ारअत की मुद्दत, वज़्ज़रअ लम युद्रिक काना अलल क्या, हालांकि कीती ने अभी तक लम युद्रे को, हालांकि कीती ने जो है अभी तक वो पक्का नहीं हुआ है, कानाल मुजारे, तो फिर मुजारे पर यानी बटाई पर, खेती करने वाले पर अजर मिसलिही, उजरती मिसल होगा, नसीबी अपने हिस्से के मुताबिक, मिनल अर्ज़ जमीन से, इला अन युस्तहज़दा, कहां तक हो, उसके कीती के काटने तक उजरती मिसल वाजिब होगा। वन्नफ़क़तु अलल ज़र्इ अलैहिमा अला मिक़दारि हुक़ूक़िहिमा, अब इसके मुताबिक जो है जितना खर्च इस कीती पर होगा, वो इन दोनों के हुकूक के मुताबिक इन दोनों पर क्या होगा, लाजिम होगा। देखो, वन्नफ़क़तु अला ज़र्इ अलैहिमा अला मिक़दारि हुक़ूक़िहिमा, और नफ़क़ जो है वो कीती और कीती का खर्च दोनों पर होगा, अला मिक़दारि हुक़ूक़िहिमा, इन दोनों के हुकूक के मुताबिक। मतलब निसब जो है मुज़ाहरात हुई थी नफ़ा पैदावार का, तो निसब वाजिब होगा, अगर एक की 2/3, एक का 1/3, तो फिर 2/3 का ज्यादा होगा, 1/3 का कम होगा। आगे क्या फरमाते हैं कि कीती पकने तक जितना मुजारात अगर बरकरार हो, तो बटाई वाले पर काम करना, यानी जिसने मुजारात की है उस पर भी काम लाजिम होगा, और आमिल पर तो वैसी भी लाजिम होगा। लेकिन अगर वो शर्त लगाए कि आमिल जो है वो काम करेगा, तो चूंकि अब तो उस ये जो है वो मुजारात की बात नहीं रही ना, बल्कि किराए की बात रही है, तो इसी वजह से जो है ये मामला फासिद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। देखो, वह उजरतुल हसादी, और कीती काटने का उजरत, व दिया से, और इकट्ठा करने का, व रिफाई, और साफ करने का, समझ आएगा, और गला क्या करने, गाहने का, यानी दियास कहते हैं गाहने का, और रिफा कहते हैं यो साफ कि किस चीज के इकट्ठा करने है, वो तजरियती ये कहते हैं साफ करने का। दोबारा सुन लो, व उजरतुल हसादी,
کھیتی کاٹنے کا، ودیا سے گاہنے کا، والرفاع اکٹھا کرنے کا، والتزریتی اور صاف کرنے کا، علیہما ان دونوں کے پر ہوگی، بالحصص اس کی حصے کے مطابق، فإن شرطاه فی المزارعات پس اگر انہوں نے شرط لگایا، ان دونوں نے شرط لگایا مزارعات میں، علی العامل عامل پر کام کرنے کا، فسدت تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گی۔ کتاب المساقات، کتاب المساقات یہ مساقات بھی آسان ہے، یعنی یہ بھی ساقہ یساق مساقتا، یعنی کیا کرنا، سیراب کرنا، پانی کو کیا، کھیتی کو سیراب کرنا۔ اصطلاحی تعریف کہتے ہیں کہ کوئی باغ والا جو ہے دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ تم میرے اس باغ کو کیا کرو، میرے اس باغ کو جو ہے پانی سے سیراب کر لیا کرو، اس کا جو ہے دیکھ بھال کر لیا کرو، اور کچھ جو پل آئے گا وہ میرے اور تیرے درمیان اتنا اتنا حصہ ہوگا، سمجھا گیا، یعنی میرا نصف ہوگا، آپ کا نصف ہوگا، یا میرا 2/3 ہوگا، آپ کا 1/3 ہوگا، یا آپ کا چوتھائی ہوگا، میرے تین حصے ہوں گے۔ تو اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کرنا، یعنی کسی کو چوکیدار بنانا کام کرنے کے لیے، کیا باغ کے پھلوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کو پانی سیراب کرنے کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا، اس کو کہتے ہیں مساقات۔ تو جس طرح جو ہے مساقات، جس طرح مزارعات میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1/3 پر یا 2/3 پر یا نصف پر جو ہے مساقات جائز نہیں ہے، نہ مزارعات جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے یہاں پر مساقات بھی اس کے قائل وہ نہیں ہے۔ دیکھو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ المساقات بجزء من الثمرة باطلۃ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ پل مقرر کر کے مساقات باطل ہے، وقال اور صاحبان فرماتے ہیں جائزۃ، یہ جائز ہے، اذا ذکر جب وہ دونوں ذکر کریں مدتاً معلومتاً ایک معلوم مدت، وسمى جزءا من الثمرة مشاعًا، اور اس طرح جو ہے کیا کر لے، وسمى اور انہوں نے کیا کیا ہو، متعین کر دیا ہو پل کا کچھ حصہ مشترکہ طور پر، یعنی کہ اتنا چٹائی دوں گا، تہائی دوں گا، اتنا پل جو ہے دوں گا، تو پھر جو ہے یہ جائز ہو جاتا ہے۔ وتجوز، اور کون کون سی باغات میں جو ہے مساقات جائز ہے، وتجوز المساقات فی النخل، اور جائز ہے مساقات فی النخل کس چیز میں، کھجوروں میں، والشجرۃ درختوں میں، والکرم انگوروں میں، والرطاب اور کس چیز میں، ترکاریوں میں، والرطاب رطب کی جمع ہے نا، یعنی تر چیزوں میں، تو تر چیزیں جو ہے وہ خضروات ہوتے ہیں، سبزیاں، وہ اصول البازا باذنجان، اور کسی سے بینگنوں میں کیا، اور بینگنوں میں جو ہے وہ کیا ہے، ان تمام باغات میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ مساقات جائز ہے۔ فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقات والثمرة تزيد بالعمل جاز، کہتے ہیں اگر دے دے کھجور کا پلدار درخت مساقات پر، اور پل بڑھا سکتے ہیں عمل سے، تو جائز ہے۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ آپ کو 1/3 ملے گا، پھر جو ہے وہ چوکیدار جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، مزدور بہت اچھا کام کرتا ہے، پھر انہوں نے عمل کے مطابق مزید بڑھا دیا کہ نہیں 1/3 کے بجائے آپ کی 2/3 پل میں آپ کو دیں گی، تو یہ جائز ہے۔ فإن دفقا، اور اگر دے دے کجور و نخلا کجور فیہ اس میں ثمرتن کے وہ پلدار درخت و مساقات کے طور پر، والثمرۃ اور کیا ہو پل، والثمرۃ تزید بالعمل، اور پلوں کو بڑھا سکتے ہو عمل کے ساتھ، جاز تو یہ جائز ہے، اور امکانات قدر، اور اگر پل کا بڑھنا اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی وہ باغ جو ہے وہ پورا یعنی کب جو ہے باغوں پر یعنی مساقات پر کب باغوں کو دینا جائز اور کب جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ باغ کہ جس کا جو ہے یعنی وہ باغ ایسا ہو کہ اس کے پل کو بڑھانے میں جو ہے عمل کردار ادا کرتا ہو، تو پر جو ہے یعنی پانی اس کو ضرورت ہو، تب جو ہے اس کو جو ہے مساقات پر دے سکتا ہو۔ لیکن اگر ایک باغ پک چکا ہو، بالکل آخری سٹیج تک پہنچ جائے، ابھی جو ہے توڑنے کی باقی ہے، تو اب جو ہے چونکہ اس کو تو ابھی پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اسی وجہ سے مساقات پر دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ دیکھو، فإن دفع، اور اگر دے دے نخلا ایک ایسا کھجور کا باغ فیہ ثمرۃ کہ وہ کیا ہو اس میں پل ہو، مساقتن بطور والثمرۃ تزید بالعمل، اور آپ کو معلوم ہوئے کہ یہ پل جو ہے وہ عمل کرنے سے بڑھ جاتا ہے، جائز تو یہ جائز ہے۔ وإن کان، تو اور اگر وہ یہ باغ ایسا ہو قد انتہت کہ اس کا پل کا بڑھنا جو ہے وہ رک گیا ہو، لم یجوز، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔
कहते हैं कि जब भी मुसाकात बातिल हो जाता है तो आमिल के लिए उजरत मिसल वाजिब है, जिस तरह मुसारआत में। व इज़ा फसरतिल मुसाका, और जब वो मुसाकात जो है वो बातिल हो जाए, फलील आमिल अज्र मिसलिही, तो फिर आमिल काम करने वाले के लिए उजरत मिसल होगी। व तबतुल मुसाकात बिल मौती, जिस तरह मुसारआत जो है वो इन दोनों में से किसी एक के मरने से जो है बातिल हो जाता है, तो इस तरह मुसाकात भी बातिल हो जाता है बिल मौत, मौत के साथ। व तफसखु बिल आसारी कमा तफसखुल इजारा, इस तरह जो है अगर किसी को जो है मुसाकात के ख़त्म करने का उज़र हो, वाक़ई उज़र हो, शरई उज़र हो, तो फिर जो है ये फसख हो सकता है, जिस तरह इजारा जो है वो क्या होता है, बाज़ आज़ार की वजह से फसख हो जाते हैं। व तफसखु बिल आज़ारी, और मुसाकात फसख हो जाएगा कमा, जैसे कि तफसखुल इजारा, जैसे कि इजारा जो है वो क्या होता है, फसख हो सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल जो है वो किताबुल निकाह पढ़ लेंगे, किताबुल बुयू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म कर दिया। ये हम जो है वो दरस निज़ामी यानी वफ़ाक़ुल मदारिस कहते हैं, हम जो है इस किताबुल क़ुदूरी को दो सालों में पढ़ाते हैं। ये किताबुल बुयू जो है ये तीसरे दर्जे में हम पढ़ाते हैं। तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि दोनों ही में पढ़ाते हैं, यानी एक ही साल में आप लोग पूरा क़ुदूरी पढ़ लेते हैं। अल्लाह आप लोगों को बामल आलिमात बनाए। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। टाइम भी पूरा है, मेरा अगला क्लास भी है। हाँ जी, कोई सवाल है? नहीं है? चलो ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।